understand everything that is going to change. What will be the format? Format बहुत अच्छा है. We will talk about the essential skills. I will give you some live examples. I will show you the recruitment things of great companies. I will also discuss some UPSC questions so that you get a complete picture. But before I start, I would like to request everyone, please be here with an attitude of learning and a willingness to change. So I start with a proverb from Heraclitus. Heraclitus was a great philosopher of Greece, and he said, which is still relevant today, that there is nothing permanent except change. इसे यूं भी कहते हैं कि change is the only constant. Now इसमें आप पैराडॉक्स देखिए कैसे है. Change is the only constant. And एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज के बारे में, that change is inevitable. We cannot avoid change, but we can only prepare, and we should prepare for the change. We should prepare ourselves. We should prepare our organization. We should prepare our future generations. And today, in this webinar, we try to be a kind of leader who guide people through change for better. And we want that those people who are attending today's webinar, they must choose out of possibility, and they must not choose out of fear or scarcity. We want you to choose out of possibility. Not to build a context in which direction are we going. This is an author. You might have read his book, Sapiens and Homo Deus. His name is Yuval Noah Harari. And he is considered as a futurist. Future historian कहते हैं इनको. ये भी एक पैराडॉक्स है कि फ्यूचर की हिस्ट्री he can write because he has analyzed so much data. So he was invited by Google Corporation to deliver a talk, and there he delivered a beautiful talk which is called as 21 Lessons for 21st Century. And later on again this talk was converted into a beautiful book. So from that book I quote, because Google has given him a title, इस author को एक title दिया है Google ने, that he is a man who is capable of predicting the future. So if I start from his book, this is the first line. He says that a person who is born today will be 30 something in 2050. And if all goes well, अगर सब कुछ ठीक रहा, that baby will still be around in 2100. So imagine करिए 2020 चल रहा है. If you have 80 years left in your life, then you will be in 2100, means you will be an active citizen of 22nd century. Active citizen of 22nd century. So 21st century ये word धीरे धीरे जा रहा है, and the remaining part of 21st century and 22nd century will be dominated by machines. So he asked one question: what should we teach that baby that will help him or her survive and flourish in the world of 2025 or of the 22nd century? ऐसी कौन सी चीज है that we can teach these people that can make them survive and remain relevant to the economy of 21st and the 22nd century? So he goes on, and this is what he has said. While I read some points from his book, you can see this visual. He says that the 22nd century and the remaining part of 21st century, starting now, will be dominated by machines, the like ones you are seeing on your screen. You can see a killer whale, but this killer whale is artificial. This is automated, and this killer whale can swim with the original whales. So this kind of machines will dominate, he says. This is an original footage, how this machine will be. And then he says that in 2030, a chef having 2 million subscribers on YouTube will be the richest person on earth. क्यों? वो शेफ अपने घर में हाथों में सेंसर पहन के खाना बनाएगा. He will wear the sensors in his hand and he will start cooking the food. And in the elite electronic kitchens, these hanging arms will replicate the dish. जैसा जैसा वो शेफ अपने घर पे करेगा, वैसा वैसा इस फ्यूचरिस्टिक किचन में ये रोबोट्रॉनिक आर्म्स ठीक वैसा ही खाना अपने घर पे बनाए.
So a chef having 2 million subscriber may become the richest person on earth. देखिए ये शेफ ने अपने हाथ में सेंसर पहना हुआ है, वो जैसा अपने घर में कर रहा है, thousands of kilometers away the machine is doing the same process. लेकिन इस रोबोट्रॉनिक आर्म्स का सिर्फ इतना काम नहीं है, even a great surgeon will perform surgery on patient and that surgery will be replicated by these arms on actual patient thousands of kilometers away. So you can simply imagine connectivity will not be an issue after 5G will come. When 5G will come, connectivity will be there. तो ये question है कि what should we teach our students that will help them to survive or flourish in the world of 2025 or this remaining part of 21st and the coming 22nd century. Unfortunately, he says, nobody knows how the world will look in 2025, not to speak of 2050. हमें पता ही नहीं है वर्ल्ड कैसे दिखेगा. What will people do for a living? लोग अपनी लिविंग के लिए क्या करेंगे? How will the armies operate? How will the bureaucracies function? हमें कुछ भी नहीं पता है आने वाले जमाने के बारे में. But the most important change will come in human body. Human body itself will change. आपके सामने artificial fish आप देख रहे हो. Human body change हो जाएगी because of bioengineering and human body will change completely because of genome mapping. और बहुत थोड़े दिनों के अंदर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस आ जाएगा. ये जो डॉग आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, this dog can replicate every function of an original dog plus he is more loyal than the original dog. तो इसके मेकर से पूछा गया कि एक मशीन असली डॉग से ज्यादा लॉयल कैसे हो सकती है. तो उन्होंने बताया कि ऐसे हो सकती है बिकॉज दिस मशीन कैन रिमेंबर योर बर्थडे, इट कैन रिमेंबर द बर्थडे ऑफ योर लव्ड वंस, इट कैन हेल्प योर किड्स इन होमवर्क. सो इस तरह की मशीन्स अगर सामने आने वाली है, then how will we survive if we don't change the way we educate ourselves. लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस बुक में लिखी हुई, which is scary as well as beautiful. तो scary ऐसे है कि whatever we are learning today will become irrelevant. आने वाले जमाने में it will become irrelevant. जैसे हम आज कोर्सेस कर रहे हैं और अगर हमने आज नहीं किए, so this will be the courses of future where robots will teach robots the upgradation, the aerobics. ऐसी classes होंगी कि upgrade your robo. Can you imagine? And all these machines are filled with intelligence. इनको intelligence के साथ भरा जा रहा है. Artificial intelligence है, machine learning है. इनके एल्गोरिदम्स को और अच्छा बनाया जा रहा है. एंड एट द सेम टाइम हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने ग्रेजुएशन के साथ क्या कर रहे हैं, वी आर क्रैमिंग इंफॉर्मेशन, वी आर क्रैमिंग इंफॉर्मेशन एंड वेरी सून आवर स्टूडेंट्स दे विल कंप्लेन. जैसा कि आज कंप्लेन करते हैं ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, दे कंप्लेन that so much information is available that we find it very hard to focus. हमारी विकिपीडिया में इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब में इंफॉर्मेशन है, फेसबुक में इंफॉर्मेशन है, हमारे न्यूज में, ट्विटर में, एवरीवेयर सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन दैट वी फाइंड इट वेरी हार्ड टू फोकस. तो इन सच अ वर्ल्ड हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी? इसका आंसर है कि हमें पड़ेगी जरूरत सबसे ज्यादा पहली the ability to differentiate between what is important and what is not important. Can you see on your screen? इसे बायोमिमिक्री कहते हैं, जहां पर हम सारे ऑर्गेनिजम्स को कॉपी कर रहे हैं. बायोमिमिक्री is when we copy the biology. Biomimicry means when we copy the biology. और बायोलॉजी को कॉपी करके we are making like this. So the first education that you must learn is to differentiate between what is important and what is not important. Second is, the most important thing that you must do is to combine all these bits and bytes of information into a complete and holistic picture of the world. ये machines भी ऐसे ही करने की कोशिश कर रही है, to combine the bits and bytes of information into complete and holistic picture of the world. And there are many schools, आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, वो कह रहे हैं कि we will teach you C++, we will teach you artificial intelligence, we will teach you Mandarin, Chinese language.
But if we make you learn this C++ and Mandarin only to discover that by 2030 the machines can code software far better than the humans. इंसानों से बहुत अच्छी प्रोग्रामिंग मशीन्स करने लगेगी. And we will discover in 2030 that Google Translate app, एक ऐप आएगा फ्री प्ले स्टोर में, which can speak better Chinese, better Cantonese, better Hakka language. Can you see this is a robot? It's an original footage from a TED talk, जहां पर एक robot is copying how to fly like a bird. So what should we teach and how shall we prepare? Can you see ants are now getting copied? Ant copy हो गए हैं, and if you are really a very popular person, if you are a very big prime minister or president of some, आपके garden में ये मिल जाएंगे, spying on you. You can simply imagine what kind of world we are about to face, and these things will become part and parcel of our life. इतना ही नहीं, they can do, the butterfly has been copied. These are the butterflies in a shopping mall, जिसको देखने customers आते हैं, and the sales they get increase. In a similar way, we have seen a robot which is capable of flying like a bird, and this is dragonfly और grasshopper जैसा चीज है ये, and it is also artificial, and moreover it is 100 times larger than the original dragonfly. Can you imagine? So what should we learn? How should we prepare? और ये machines बस अब आने वाली हैं. कंगारू तक को कॉपी कर लिया गया है machines में, and all these machines are learning by themselves, where at the same time the human beings, they are cramming so much information in them. So this brings us to a very important line that he said, we don't know how the armies will function. तो आप में से कई लोगों का एक बहुत बड़ा सपना होगा to join the Air Force. Air Force में this is how the planes will be. This is a Boeing plane, pilotless, just like a driverless car. It will be a pilotless vehicle, and it will fly in the sky. ये sky में fly करेगा, and it will be more efficient than the original Air Force, which requires a pilot to fly it. अभी ये वाला वीडियो तो आपने देखा, लेकिन आपको जो मैं अब लेफ्ट हैंड साइड पे दिखा रहा हूं, that is more important. This is an F-16 plane. F-16 plane में आप देखोगे pilot is sitting, but pilot is sitting only to check the checks, and once the checks are checked, pilot will come out. Can you imagine? The pilot will come out, and the plane will be ready to fly without pilot. वो बिना pilot के उड़ेगा आसमानों में, and the plane will just simply take off without pilot. And here is a horrible thing about this video. इस वीडियो में एक डराने वाली बात है बहुत. वो क्या है? It's a footage of 2016. आज से 4 साल पहले का वीडियो है. So you can simply imagine. Today our parents, they tell us not to play video games so much. क्या पता हो future में the Indian Air Force or any Air Force may give an advertisement that all people who are very great at playing PlayStation 3 and flying F-16 in their PlayStation, they are invited to join the Air Force. This is the future, bachcho. Future is where every human job that we can replicate will be taken up by the machines. तो आज का ये जो वेबिनार है Academy of Life and Futuristic Sciences, ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबिनार है. यहाँ बोला हुआ हर वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. I want you to sit with a pen and paper. और बहुत सारी चीजें जो मैं बताऊंगा, you will have to note it. And from today itself, आज से जो आप पढ़ाई करोगे, you have to change your education in accordance with what guidance I am about to give you. So can we proceed forward? In his book, he gives solution very small. And today we will have an elaborate solution. He says, so what should we teaching? हमें क्या पढ़ाना चाहिए? तो he says, first is the many scientists and pedagogical experts, they argue that the school should switch to teaching the 4 C's. ये 4 C's पढ़ाना चाहिए. आपको नोट करना चाहिए इन चीजों को. Critical thinking, communication, collaboration and creativity. ये 4 C's will enable us to survive. Communication, collaboration, critical thinking and creativity.
एट द सेम टाइम द स्कूल शुड डाउन प्ले द टेक्निकल स्किल्स, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं है टेक्निकल दैट द मशीन्स कांट डू, एंड मशीन्स आर रिप्लेसिंग ह्यूमन बीइंग्स। इसका एक बहुत बड़ा एविडेंस है। आप में से जिस लोगों ने इंजीनियरिंग का मन बनाया है, गो फॉर आईआईटीज और गो फॉर सम रीजनल एनआईटीज। किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि देयर आर नो जॉब्स। 2.7 लाख 2,70,000 इंजीनियरिंग सीट्स हैव गॉन वैकेंट दिस ईयर, क्योंकि इंजीनियरिंग करके किसी भी तरह का जॉब नहीं मिल रहा है। तो आप गूगल करके देखिए, उस पर सिर्फ लिखना पड़ेगा इंजीनियरिंग सीट्स वैकेंट, and it will show you the horrible reality of the job market when it comes to technical skills. So schools should downplay the technical skills and emphasize more on general purpose life skills. Most important, ability to deal with change. हमें अपने बच्चों को पढ़ाना होगा how they deal with change, how to learn new things, and to preserve your mental balance in unfamiliar situations. जो अनफैमिलियर सिचुएशन है उसमें हम कैसे अपना मेंटल बैलेंस को प्रिजर्व करें। दिस ब्रिंग्स अस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी विल नीड टू टीच आवर चिल्ड्रन हाउ टू री इन्वेंट योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। आप इसको एक बार आंख बंद करके सुनिए, हाउ टू री इन्वेंट योर सेल्फ अगेन एंड अगेन। तो आज हमारी पोजीशन बिल्कुल जस्ट लाइक दिस पीपल हु आर सिटिंग ऑन द राफ्ट, बिल्कुल ऐसी है। They can see the turbulent waters ahead, and they know, all of them, they know that there is a waterfall down across the valley. So उन्हें पता है कि थोड़ी देर में waterfall आने वाला है, and if they don't do anything now, their entire generations, entire future organization, they themselves may plunge into that waterfall. बस हमारी position आज ऐसे ही है। In order to solve this crisis, today we have organized this webinar. If we understand this change, अगर हम इस चेंज को अच्छी तरह से समझ ले, देन वी कैन मेक पॉजिटिव चेंज और वी कैन मेक द चेंज पॉजिटिव। मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, व्हाइल यू सिट हियर, बी एन ओपन हार्ट पर्सन टुडे हु इज विलिंग टू लर्न एंड विलिंग टू चेंज। सेकेंड, चेंज इज अनप्रेडिक्टेबल। हमने अपने देखने में सबसे अच्छी रिसर्च की है, बट स्टिल द थिंग्स कैन गो फार्दर देन व्हाट वी आर अबाउट टू सजेस्ट। इसलिए टुडे इटसेल्फ यू विल हैव टू स्टार्ट चेंजिंग योर लाइफ। सो फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी, सॉल्यूशंस को हम 3 हेडिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं। द 3 स्फीयर्स ऑफ चेंज वी कैन ब्रिंग। सबसे पहले व्हाट्स चेंजिंग, व्हाट्स अनचेंजिंग एंड व्हाट नीड्स चेंजिंग। इफ वी सी दिस 3 स्फीयर्स ऑफ लाइफ, इसका मतलब है व्हाट इज गोइंग टू चेंज, what is not going to change, and what needs changing. And the most important thing that needs to be changed is, now we are entering in an era where the machines are learning for themselves. तो हमें भी खुद पढ़ना होगा, खुद सीखना होगा, and a new pedagogy has to be invented, which is called as self-teaching or self-learning. Self-teaching or self-learning. And what would be the role of teachers? To create the circumstances in which the student starts learning for themselves. This is something our friend Albert Einstein knew, with whom we grew up. इसलिए मैं कहता हूँ ये हमारे फ्रेंड है, क्योंकि हर बच्चा इनके साथ बड़ा होता है। He once said, I don't teach my students. मैं कभी नहीं पढ़ाता। I provide the circumstances in which they can learn, in which they start learning. So teaching must be replaced with the providing of circumstances in which the students they start themselves learning. इसकी वजह से we can again imagine this is you, ये आप हो, and we can divide this. You need a 3 cluster of change, 3 cluster of skills लगेगी आपको in order to survive the future. पहले क्लस्टर को हम कहते हैं, आपको नोट करना चाहिए, The first cluster will revolve around an ability to understand. आप किसी बात को कितनी गहराई से समझ सकते हो, your ability to understand. और जब आपको गहराई से समझ में आ जाए, your ability to strategize for and solve complicated problems. आप कितना किसी complicated problem को अच्छे से समझ के solve कर सकते हो, this will make you stand.
Do you have different modes of thinking? This is another something that the world will ask from you, वरना कोई नौकरी नहीं है. Do you have different modes of thinking? Do you have the ability to garner insights, invent, innovate? Can you be more creative? Can you be agile? Agile कहते हैं adaptability को. Can you adapt to any situation? Can you be creative? Can you be innovative? Can you understand insight mapping? Can you understand the design strategy? And can you be situational intelligence? Situational intelligence means आपको जिस भी situation में डाला जाए, can you show your intelligence there? This is the first set. Second set is the communication. Second cluster centers around people's skill like ability to persuade. क्या आप अपनी बात मनवा सकते हैं? Ability to persuade. The ability to engage. क्या आप लोगों को engage कर सकते हैं? Ability to move others towards a shared goal. क्या आप लोगों को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं कि वो आपका सपना आपके साथ मिलकर देखें? Can you inspire? Can you influence? Can you move others to action? And most importantly, can you engage and galvanize the support for one's ideas? क्या आप अपनी आइडिया के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट बेस तैयार कर सकते हैं? So are you creative? Are you capable of solving complicated problems? Do you have different modes of thinking is not enough? You must be able to explain and garner support for your idea. Move people, influence people, engage people, inspire people. Unless and until you have that, you are not going anywhere in this century. And the third set of skills is, can you control your performance under pressure? Can you control your emotions? Can you control your fear? Can you control the quality of an output? Can you control the environment? And now I will start explaining one by one what changes you need to bring in your education starting today. I hope I am not going very fast. आपको ये बात धीरे धीरे समझनी है और आज से अपने अंदर चेंजेस लाना है. So the first thing that you need to change immediately, right now, बिल्कुल आज से, is creativity. Creativity के बिना we are not going anywhere because AI and robots, they are also becoming creative. But thank God that they can't match the creativity of human beings, at least till now. अभी तक तो नहीं कर सकते. But can you see what kind of persons have we become? Imagine करिए, अगर आपके हाथ में अभी एक सादा कागज और पेन हो, and if I ask you to do something creative, 8 out of 10 people, they will revert and ask me, sir, क्या करना है? I said, do something creative. They will say, वो तो ठीक है, पर करना क्या है? So, PU Foundation का एक research है which says that 8 out of 10 people are not creative. और जो 2 लोग creative हैं, उसमें से 1 out of every 4, यानी 1 out of every 4, they feel that they have not done or they are not doing or they are not living up to their creative potential. In a world where every process which can be replicated, मेरी बात को बहुत गहराई से सुनिए, in a world where every process can be replicated, the robots are going to dominate all the replicating process. And when the robots start dominating all the replicable process, the only thing which will be left for human beings will be creativity. हर वो चीज जो replicate की जा सकती है, जिसे copy किया जा सकता है, robots will take all those jobs. And the only jobs that will be left for us will be creativity. इसका एक थोड़ा सा मिमिक्री करके दिखाता हूँ रोबोट की. If you ask any robot, अगर कभी मिल जाए किसी शॉपिंग मॉल में, किसी शोरूम में, what can you do? तो रोबोट अपनी टिपिकल इलेक्ट्रॉनिक एक्सेंट में जवाब देगा, इफ यू कैन रिप्लिकेट इट, आई कैन ऑटोमेट इट. यानी हर वो चीज दैट वी कैन रिप्लिकेट, दे विल ऑटोमेट. इसलिए क्रिएटिविटी इज सो इंपॉर्टेंट. आपको अपने सिलेबस के साथ खेलना सीखना होगा.
आपको अपने लेसन्स और चैप्टर्स के साथ खेलना सीखना होगा इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस सेंचुरी। इसे यूं कहते हैं कि क्रिएटिविटी इज वेरी क्रिटिकल टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्रिएटिविटी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। Without new creative things coming in the market, the economy is not going forward. So every company in this world is looking for some creative people who can give us an idea which can change everyone's life. In a similar way, creativity is very valuable to society. बिना क्रिएटिविटी के हम कहीं नहीं जा रहे, आज तक हम कहीं नहीं गए। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड थिंग इज क्रिएटिविटी मूव्स द ह्यूमन रेस फॉरवर्ड। क्रिएटिविटी मूव्स द ह्यूमन रेस फॉरवर्ड। एक बहुत अच्छा सवाल था मेरे आईएएस के इंटरव्यू में, मुझे आज भी याद है। व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन साइंस एंड हिस्ट्री? साइंस और हिस्ट्री वी बिलीव आर टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स, पर उन्होंने पूछा बहुत अच्छा था, व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन साइंस एंड हिस्ट्री? और इसका जवाब बहुत अच्छा है। एवरी पैराडाइम शिफ्ट जो जमाने को बदल के रख दे, एवरी पैराडाइम शिफ्ट इन साइंस is called as invention, and every paradigm shift जो जमाने को बदल के रख दे in history is called as revolution. And what is the another easy word for paradigm shift? Every creative product or creative idea which can change everything is what is known as invention in science, and it is known as revolution in history. और अगर आप क्रिएटिव हैं तो मैं आपको एक ऐसी कंपनी से मिलवाता हूं। फॉर 2012 उन्होंने अपने रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई है, दैट इफ यू आर अ क्रिएटिव जीनियस जस्ट कम एंड वर्क विथ अस, जस्ट क्लियर द टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड वी विल गिव यू इमीडिएटली एन एम्प्लॉयमेंट विथ 5 डिजिट सैलरी। एंड दे आर द एडोबी के रिक्रूटमेंट में एडोबी के प्रोडक्ट्स, दे आर वन ऑफ द टेक जायंट्स ऑफ द वर्ल्ड। इसके प्रोडक्ट बहुत शानदार हैं, वी ऑल नो। ये only they only, and there is one reason why they are industry leaders, they only give employment to creative people. So what is creativity? Creativity के बारे में एक बड़ा गलत हमारा ख्याल है that creativity is an act of genius. Creativity is a flash of inspiration. ये जादू से होता है। Creativity is a mysterious force, it's magical, it happens by luck. All these things are wrong, बच्चों। Creativity is more a discipline than talent. It's more a discipline which can be improved upon by practicing. Creativity is an ability to think in ways other people cannot think. ऐसा सोचो जैसा और लोग नहीं सोच सकते। Creativity is an ability to think in a way that other people cannot think. Creativity means solving problems in ways that other people cannot solve. Creativity is innovation. Creativity is flexibility in our approach. Creativity is agility, adaptability. जैसे हालात आए उस हिसाब से adaptation. Creativity is more about ingenuity. Ingenuity मतलब we can practice, we can improve upon, we can do wonders. This is what the creativity is. Creativity, Pablo Picasso ने कभी कहा था, the great painter, every child is an artist. The problem is to remain an artist once they grow up. Problem ये है to remain an artist जब हम बड़े होते हैं। तो I make you meet two sisters. This is Suzanne Wojcicki and another is Anne Wojcicki. Suzanne Wojcicki ये ब्लैक कलर में है, Anne Wojcicki व्हाइट कलर में है। Suzanne Wojcicki and the sister, both of them, they featured in Forbes 100 list of most powerful CEOs on earth. दोनों बहनों का नाम है उसमें। And do you know Suzanne Wojcicki? She is a CEO of YouTube. YouTube की CEO है। तुमसे पूछा गया कि आप अपनी कॉर्पोरेशन में ऐसा क्या करते हो कि both of you have been selected as one of the best CEOs of the world, और एक ही फैमिली से दो बहनों को सिलेक्ट किया गया। So she regaled, यहां पढ़ के देखिए, she enthusiastically regaled the audience with her tale. उन्होंने बताया of how the company's staff, YouTube का staff, now occupied some of their time with painting, drawing and even sculpting.
क्यों? They understand that creativity is doing things in way that others cannot do. They used to draw, they are drawing, they are painting and they are sculpting to demonstrate their commitment to creativity. ऐसा बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में हो रहा है. एंड जब दोनों बहनों का नाम आया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल लेडीज ऑन द अर्थ, तो everyone went to mother and mother was asked how did she raise two CEOs. So mother said, I didn't raise two CEOs, rather I raised two CEOs and doctor. I have three successful daughters. And do you know what I did? So she wrote a book, How to Raise Successful People. मदर ने लिखी, लेकिन यहां देखिए उस मदर के सामने भी वही क्वेश्चन था जिसको सॉल्व करने हम आज बैठे हैं. हाउ विल आवर चिल्ड्रन सक्सीड इन द एज ऑफ रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? In the age of robots and artificial intelligence, how will our children succeed? How will they thrive in tech revolution? These anxieties are familiar to parents. तो सबसे पहला जो अपनी लाइफ में चेंज करना है वो ये है, किसी का बेटा कुछ भी करे, हमें ग्रेजुएशन इस बात पे तय नहीं करना कि हमारा पड़ोसी और आवर रिलेशंस और आवर फ्रेंड्स दे आर डूइंग व्हाट. You genuinely need to be passionate about the work. देखिए यहां लिखा है, I allowed my daughter to be genuinely passionate about the work they are doing. जिसमें हमको पैशन आता है, we only need to do that. किसी की नहीं सुनना है. क्यों? इंजीनियरिंग होने के बाद nobody will ask, अरे नौकरी क्यों नहीं मिली? They will only say, अरे नौकरी कर क्यों नहीं रहे? कैसे करें? When the machines are replacing human. So you have to be genuinely passionate. And I've told you, if you even start your YouTube channel of cooking, and if you cook very well, it will get replicated by the arms all over the world. Creativity में मजा क्यों है पता है? क्योंकि creativity is intelligence having fun. एक ऐसा intelligence जिसमें मजा आता है. Creativity is kind of intelligence having fun. और मजा क्यों आता है? इंटेलिजेंस कैसे है? हाउ कैन वी इंप्रूव? दिस इज द लाइन. क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी टू थिंक, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. इसको लिख लेना चाहिए आपको. आपके बुक जब आप खोल कर बैठो, जब अपने नोट्स को खोल कर बैठो, जब अपनी किताबों को खोल कर बैठो, तो उसे इस तरह पढ़ना चाहिए. क्रिएटिविटी इज एन एबिलिटी टू थिंक, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन वेज वी हैवंट सीन बिफोर. आपको ये बात समझाने के लिए मैंने अपने बच्चे की एक शीट लेकर आया हूं, हाउ ही प्लेज विथ नंबर. वो नंबर्स के साथ कैसे प्ले करता है. सो इमेजिन करिए, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9. दिस इज हाउ ही राइट्स बाय यूजिंग सम स्टेंसिल एंड स्केच पेन्स. छोटा है अभी. नाउ इफ वी ओपन इट, तो उसने इसको उल्टा लिख दिया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 उल्टा. Do you remember that line? Creativity is an ability to see things in ways that others cannot see. तो अब आप देखिए, जब उल्टा और सीधा 1 2 3 4 लिखा, तो it became a table of 9. ये 9 का टेबल बन गया. पहले मैं एक सादा एग्जांपल ले रहा हूं. आई एम टेकिंग एन इजी एग्जांपल एंड देन इमीडिएटली आई विल टेक अ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल. सो व्हेन यू राइट 1 2 3 4 सीधा एंड उल्टा, it becomes a table of 9. But इसके आगे मिरर रख के जब देखो, तो it becomes like this. If we can turn, this is how he shows his creativity. Can you see 0 9 का 9 0 हो गया, 1 8 का 8 1 हो गया, 2 7 का 7 2 हो गया, 3 6 का 6 3 हो गया. यानी 9 का टेबल हमको उल्टा मिल गया when we do it in mirror. Can you see this? और हम सबको पता है 9 का टेबल कैसे याद रखना है. अपनी 10 फिंगर्स को आगे बढ़ाना है. एंड 9 1s are 9, 9 2s are, जैसे हम सेकंड फिंगर दबाते हैं 18. देखो ये 1 है, दिस इज 1 एंड दिस इज 8. 9 2s are 18, 9 3s are 27. कैन यू सी? ये 2 और ये बचा हुआ 7. कैन यू सी? 9 4s are 36. ये 3, ये 6 का मतलब 36. 9 5s are 45. देखना ये 4 और ये 5, 45. 9 6 are 54. देखो ये 5 और ये 4. 9 9s are 81. जैसे मैंने 9th बनाया, देखो ये 8 आ गया और ये 1. बट ऐसा लिखकर मिरर किया तो वी गेट सीधा एंड उल्टा. वी गेट
ulta table of 9. But here is the beauty, to see things in a way that others cannot think. Take any big number, कोई भी बड़ा नंबर ले लो, and subtract a small number from it. उसका mirror image बना के, the answer is always divisible by 9. I show you. यहाँ देखो, दिस इज अ बिग नंबर, उसको उल्टा किया है हमने, 92 को 29 किया. जब 92 में से 29 को माइनस किया, द आंसर केम 63. जब 41 में से उल्टा किया, 14 किया, द आंसर केम 27. एंड वी नो दैट 63 एंड 27 बोथ आर डिविजिबल बाय 9. लेकिन एक मजेदार बात और है, 9 के हर फैक्टर को ऐड करने पर 9 ही आता है. करके देखिए 9, 1 plus 8, 8 plus 1, 9, 2 plus 7, 7 plus 2, 9, 3 plus 6, 9, 6 plus 3, 9. टेक एनी बिग नंबर, आज आप घर पे करके देखिए, अपने बच्चों को करके दिखाइए कि वी कैन प्ले सो मच विथ नंबर. एनी बिगर नंबर, टेक इट्स मिरर इमेज, make it subtract from the larger number, the answer always comes equal to 9. So your ability to see things in different ways. कभी 9 के टेबल पे इतना सोच के देखा है? अगर नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, आपका जॉब रोबोट ले जाएगा. और अगर आपने सोच कर देखा है, यू नो हाउ टू डू इट वेरी क्रिएटिवली, आपको कोई रोबोट, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कभी नहीं हरा पाएगा. ग्रेजुएशन वालों से कह रहा हूं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वालों से कह रहा हूं, आपको पता है कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल? आई शो यू अ क्वेश्चन था, इफ गांधी वेयर अलाइव टुडे, अगर आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? इफ गांधी वेयर अलाइव टुडे, पहले तो जीएस पेपर 1 यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन आया हिस्ट्री के पेपर में, लेकिन हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं है ये. इफ गांधी वेयर अलाइव टुडे, गांधी वेयर ये हिस्ट्री है, अलाइव टुडे ये करंट अफेयर्स. आज गांधी जिंदा होते तो क्या कर रहे होते? गांधी वेयर अलाइव टुडे, वो क्या करते? तो आज वी हैव सो मेनी इश्यूज and we need to understand गांधी जी in such a way that we can correctly write down कि गांधी जी इनके साथ क्या करते. तो it's an honor कि मेरा स्टूडेंट सेकंड रैंक आया था इंडिया में. and what is India? 1/7 of humanity. ह्यूमैनिटी का 1/7 है, उसमें वो सेकंड रैंक आया था. उसका लिखा आंसर है, मैं आपको दिखाता हूं. फर्स्ट, गांधी जी वुड हैव डिमांडेड फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पाकिस्तान, for which he would be exiled from India. उनको इंडिया से निकाल देते when he would demand a fair treatment of Pakistan. So Gandhi ji would have gone to Pakistan. There he would have found कि Hindus are persecuted. Hindus को persecute किया जा रहा है, कहां पर? पाकिस्तान में. So he would have started prayer meeting in Pakistan. गांधी तो गांधी है, सच के साथ इंडिया में, सच के साथ पाकिस्तान. तो पाकिस्तान वाले उनको निकाल देते, but he has started the prayer meeting and he is bringing the attention of the world. So Gandhi ji would have been welcomed back in India under the amended Citizenship Amendment Act. उनको जब वहां से निकाला जाता, we would have offered him again citizenship, this government, under Citizenship Amendment Act. और यहां आने के बाद वो चुप नहीं रहते. He would have quoted a line from Ramayana in which it is written, holy book Ramayana, उसमें लिखा है that the correct dwelling place of Lord Ram is in the heart of his followers, not any temple. वो आकर ये बताते तो गांधी जी पे सेडिशन का केस चलाया जाता. But Gandhi ji would have refused any lawyer because he himself was a lawyer, so he would have fought his case and he would have been exonerated from Supreme Court. देखिए थिंकिंग, देखिए उस बच्चे की क्रिएटिविटी देखिए. गांधी जी would have protested against becoming a mascot of Swachh Bharat because he would have asked, जब भाईचारा मिटा रहे हो तो सफाई, मेरा ये वाला पैगाम लेके कहां जाओगे? पहले भाईचारा पैदा करो. So he would have protested becoming a mascot of Swachh Bharat, and Gandhi ji would have kept a series of fasts against lynching of people in the name of cow. Haile Gandhi, our father of nation, he writes, Gandhi ji would have kept a series of fasts against lynching in the name of cow, and Gandhi ji would have been launched an NCM movement against Oxfam. आपको पता है Oxfam का रिपोर्ट क्या कहता है? 1% Indian has 73% wealth.
गांधी जी उनके खिलाफ आंदोलन करते, एनसीएम का आंदोलन करते, गांधी जी वुड हैव बीन अघास्ट एट द प्रोलिफरेशन ऑफ गॉड मैन एंड गॉड वीमेन। इतने सारे गॉड मैन गॉड वीमेन जो पैसा कमा रहे हैं, गांधी जी उनके खिलाफ भी आंदोलन करते। एंड गांधी जी वुड हैव लाफ्ड, खूब हंसते बापू, फॉर हिज पोर्ट्रेट अलोंग विद वीडी सावरकर इन पार्लियामेंट बिल्डिंग। गांधी जी वुड हैव लाफ्ड कि मैं सावरकर के साथ यहाँ क्या कर रहा हूँ। सावरकर वाज वन ऑफ द co-accused in Gandhi assassination case. Gandhi ji would have launched a movement for climate change. Gandhi ji was a chatur baniya, so he would have approved GST, but Gandhi ji would have launched a second Dandi march against the rates of GST. And Gandhi ji अगर आज जिंदा होते तो he would have started his own YouTube channel, own podcast channel, and Gandhi ji would have written in all the leading newspapers of India. Thank you, बच्चे. Can you see the creativity? Can you see the ability to see? Can you see the ability to see the things in different ways? Can you see how to play with your syllabus? Can you see how to play with your content? वरना competitive exams कैसे निकालोगे? Question क्या है? If Gandhi were alive today. If Gandhi were alive today, मतलब creativity is an ability to think, to solve problems in the ways we haven't seen before. और आने वाले जमाने में ग्रेजुएट से कह रहा हूं, एक ही बात पर रिक्रूटमेंट मिलेगा, उसे कहते हैं क्रिएटिविटी ऑन डिमांड। क्रिएटिविटी ऑन डिमांड इस बात पे मिलेगा। इमेजिन करिए, अकेडमी ऑफ लाइफ एंड फ्यूचरिस्टिक साइंसेस की तरफ से वी आर अबाउट, अगर हम ऐसा कह दें कि वी विल ऑफर यू वन फोन, तो आप कौन सी कंपनी लोगे? यू कैन टेक एनी वन। सो मैक्सिमम ऑफ यू विल टेक एप्पल, सम ऑफ यू मे टेक सैमसंग, वेरी फ्यू विल टेक शाओमी। शाओमी बहुत कम लोगे, लेकिन शाओमी के पास एक ऐसा प्लान है विथ विच दे आर गोइंग टू डिफीट, दे बिलीव द एप्पल एंड सैमसंग, द एप्पल एंड सैमसंग। इसे कहते हैं क्रिएटिविटी ऑन डिमांड। पता है शाओमी ने क्या ऑफर किया है? एनीवन हु परचेसेस देयर मोबाइल, जो भी उनका मोबाइल खरीदे, दे कैन कॉन्टैक्ट देम एंड दे विल मेक अ कस्टमाइज्ड ऐप फॉर दैट कस्टमर। हर कस्टमर शाओमी का, वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट बताए एंड वी विल मेक एन ऐप, क्रिएट एन ऐप, क्रिएटिविटी ऑन डिमांड, एंड वी विल गिव दैट कस्टमाइज्ड ऐप ओनली टू हिम। ऐसा कोई और कंपनी ऑफर नहीं कर रही। और शाओमी कहती है इफ यू आर अ क्रिएटिव ऐप मेकर, आप बहुत अच्छा ऐप बनाते हो किसी की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, जस्ट गिव अस अ कॉल, वी विल रिक्रूट यू। कहा लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही, कहा शाओमी क्रिएटिव इंजीनियर्स को ढूंढ रहा है। Without creativity, you are going nowhere, बच्चों. It's not the stone, but the chipping on the stone, which is creativity. It's not the first wheel, but the wheel with the spokes, which is creativity. It's not the fire, but the ability to control fire. 6 दिन का एक वर्कशॉप हम करने जा रहे हैं। 6 दिन के इस वर्कशॉप में हम आपको बुलाएंगे। नॉमिनल फीस है उसकी, because we don't want non-serious candidates to attend that. हम बिल्कुल serious candidates चाहते हैं। उसमें फर्स्ट डे हम यही सिखाने वाले, the power of invention and ability to see things in new and different ways. वरना ये क्वेश्चन का क्या करोगे if Gandhi were alive today? पता है आपको 2019 में क्या क्वेश्चन आया था? 2019 में ये क्वेश्चन आया था, मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये क्वेश्चन आया था। कैन यू सी द क्वेश्चन? दिख रहा है लिखा? दिख रहा है लिखा हुआ? दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। पता है क्यों? क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था इमेजिन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया विदाउट गांधी। गांधी की बिना इंडिया की हिस्ट्री को इमेजिन करो। क्या लिखते आप? अगर रट के जाते तो क्या लिखते? रोट लर्नर्स सर पकड़ के बैठे थे, ओनली दोज हु हैड क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, बस वही उसका आंसर दे पाए। और अच्छा आंसर लिखने पे पता है क्या मिलता है? सेकंड रैंक इन यूपीएससी। कैन यू इमेजिन? इस क्वेश्चन का क्या करते आप? एक 2025 का ग्रेजुएट, उसको गूगल ने ताना मारा है कि एक ग्रेजुएट से पूछा जाएगा 2025 में, आज से 5 साल बाद, डू यू नो एवरीथिंग? ही विल से आई नो एवरीथिंग, फिर धीरे से बोलेगा बाय सर्चिंग। जब हर इंफॉर्मेशन गूगल पे और विकिपीडिया पे होगी, देन व्हाई शैल वी हायर यू द क्रैमर,
हर चीज रटते हो, हम तुम्हें क्यों हायर करें? तो आंसर है इसलिए हायर करें क्योंकि आई नो द विजडम, आई नो द डीप थिंकिंग, आई नो द रिफ्लेक्शन। आपको पता है एक क्वेश्चन और सुनाता हूं यूपीएससी का। पहले ऐसे आते थे, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, सेकंड बैटल कॉजेज एंड थर्ड बैटल कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेस। ये मिल जाएगा विकिपीडिया। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कॉजेज, एलेक्सा पढ़ के सुनाता है, यस सर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन ऐसे, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन हु वन, व्हाई ही वन, यस सर, वो भी सुनाता है। लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी ने ऐसा पूछा, बड़ा शानदार, व्हाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स वेयर फॉट इन पानीपत, व्हाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स वेयर फॉट इन पानीपत। ये किसी बुक में नहीं मिलता, ये गूगल पे नहीं मिलता। आज आप गूगल सर्च करेंगे तो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के अपलोड किए हुए आंसर दिखता है। मुझे आज भी याद है जिस दिन ये क्वेश्चन आया था, व्हाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स वेयर फॉट इन पानीपत, सब लोग गूगल के पास गए थे और जैसे ही उससे ये क्वेश्चन पूछा था, व्हाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स वेयर फॉट, गूगल सेड सॉरी दिस पेज कांट बी फाउंड। क्यों? मशीन्स को उतना ही पता है जितना हमने उनको बताया। एंड दिस इन्वॉल्व्स डीप थिंकिंग, रिफ्लेक्शन, विजडम, क्रिएटिविटी, सबसे बढ़कर अपने सिलेबस को इमेजिन करना। और अपना फ्रेंड, इसने ये बात 1930 में बताई थी, याद है आपको अपने दोस्त के बारे में? He said imagination is more important than knowledge. तो अगर आपने कागज पेन लिया है, वैसे उम्मीद तो नहीं है कि टीचर कुछ बोले और बच्चे वेबिनार में आए सुनने और वो करें, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप लिख रहे हैं। The first change you need to bring in your education is creativity. The second change you need to bring in your education is deep thinking and reflection. The third thing that you need to change in your education is imagination. जब तक ये सब नहीं होगा ना बच्चों, आप पढ़कर कोई फायदा नहीं है, आप पढ़कर घर में बैठने वाले हो। बहुत कड़वी बात बोल रहा हूं, आप पढ़कर घर में बैठने वाले हो। क्यों? मैं एक स्टैटिस्टिक्स सुनाता हूं। अभी 12th का रिजल्ट आया, बच्चों। 12th का रिजल्ट में सिर्फ दिल्ली का बता रहा हूं, सिर्फ दिल्ली 36,085 स्टूडेंट्स हैं दिल्ली में जिनके 95% से ऊपर आए। सिर्फ दिल्ली में 36,085 स्टूडेंट, और दिल्ली में 16,000 कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके 97% से ऊपर आए। आप मार्क्स लेके क्या करोगे? मार्क्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंटेलेक्ट, ये इमेजिनेशन, ये डीप थिंकिंग, ये रिफ्लेक्शन, ये क्रिएटिविटी उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर बच्चों, इसके बिना आप कहीं नहीं जा रहे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दिस ब्रिंग्स अस टू नेक्स्ट, विजडम। एक नया प्रेशर आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे अभी कि एग्जाम्स कैंसिल करने से अच्छा है घर से एग्जाम ले लो। तो उन्होंने कहा घर पे तो बच्चे कॉपी करेंगे। कहा नहीं, ऐसे क्वेश्चन पूछो कि इवन इफ दे कीप अ बुक इन फ्रंट दे कांट आंसर। अगर वो अपने सामने किताब रख लें तो भी आंसर ना कर पाए, इसे कहते हैं ओपन बुक टेस्ट। ओपन बुक टेस्ट में विजडम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। कैसे विजडम बेस्ड सर? वैसा ही, इफ गांधी वेयर अलाइव टुडे, इमेजिन हिस्ट्री विदाउट गांधी। उसके बाद व्हाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स वेयर फॉट इन पानीपत। आप सामने किताब रख लो, गूगल रख लो, लैपटॉप रख लो, यू विल नेवर बी एबल टू आंसर। और जितने बच्चे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, अब प्रीलिम्स में फैक्ट नहीं पूछते यूपीएससी, प्रीलिम्स में पूछते हैं विच अमंग्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर करेक्ट। और बहुत सारे सेंटेंस दिए होते हैं, ए सी एंड डी आर करेक्ट, ए बी एंड ई आर करेक्ट, सी इज रॉन्ग। इस तरह के क्वेश्चन पूछते, विजडम, डीप थिंकिंग, रिफ्लेक्शन। इसके बिना आईएएस भी नहीं बन पाओगे, चाहे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को कितना भी पैसा दे देना। डू यू नो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द फ्यूचर इज, हम पता है एक दिन में कितना डेटा क्रिएट करते हैं? क्विंटिलियन। क्विंटिलियन का मतलब होता है 10 to the power 18। 10 to the power 18। कैन यू इमेजिन? एक दिन में 2.5 into 10 to the power 18 बाइट्स ऑफ डेटा हम नया पैदा करते हैं। 2.5 into 10 to the power 18 बाइट्स ऑफ डेटा एवरी डे। इतना डेटा किसी काम का नहीं है unless and until there is one human being who can bring meaning to that data. Can you bring meaning to the data? Can you bring sense making? Can you bring good judgment? Can you bring
कैन यू ब्रीद लाइफ इन दैट डेटा? क्या तुम उस डेटा पे जिंदगी डाल सकते हो? उस डेटा से कोई ऐसा इंसाइट दिखा सकते हो जो कोई और नहीं देख सकता? इफ यू कैन डू दैट, वर्ल्ड आपको घर से उठाकर ले जाएगा अपने यहां जॉब करवाने। आपको अप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा, कैंपस से ही सिलेक्शन हो जाएगा। Can you generate impacts and consequences? Can you generate that insight, that good judgment, that intelligence that no one else can see? अगर ऐसा है, they will take you with them like something, इसे कहते हैं reading statistics along with history, psychology, current affairs. जिसको ज्यादा दिखता हो, future belongs to whom? पूछते हैं future belongs to whom? कहा easy है, future belongs to those person who can generate insight and imagine impacts and consequences. Generate insight, imagine impacts and consequences. आज से कोई बुक पढ़नी नहीं है जब तक हम ये काम ना कर दें. Generate insight, imagine impacts and consequences well beyond the accumulated knowledge. ये accumulated knowledge सबके पास है बच्चों. आप कुछ नया करके दिखा सकते हो क्या? Can you play with your chapters? Can you play with your lessons? Can you generate a new insight? If yes, then you are the next Steve Jobs. Can you imagine? आपको उठा के ले जाएगी कंपनी, घर से उठा के ले जाएगी. So, following are the advices. हम अलिफ में ऐसा करवाते हैं, हम चाहते हैं आप भी ऐसा करें. सबसे पहले while reading a chapter or a lesson, learn to read the signs and look for pattern. गांधी जी की लीडरशिप के पैटर्न देखिए. Look for some signs. Be aware of biases. ये biases क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट. I will just show you. सबसे इंपॉर्टेंट है contrary thinking. Sit on the other side of argument. उसकी नजर से भी देखो, उसकी नजर से भी देखो. शिवाजी की नजर से, छत्रपति शिवाजी की नजर से भी देखो. औरंगजेब एम्परर की भी नजर से देखो. राणा सांगा द ग्रेट की नजर से भी देखो. बाबर. सिट ऑन द अदर साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट. सीक टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट एनालाइज. इस पर मुझे याद आता है, शशि थरूर ने एक स्पीच की थी कि हाउ ब्रिटेन लूटेड इंडिया. ब्रिटेन ने इंडिया को कैसे लूट किया. बाद में वो एक बुक बनी, द इनग्लोरियस रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. आपको पता है वो स्पीच इतनी वायरल कैसे हुई? हाउ ब्रिटिश लूटेड इंडिया. इस स्पीच को देने के लिए ऑक्सफोर्ड ने शशि थरूर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बुलाया और लंदन के ऑडिटोरियम में खड़े होकर उन्होंने लंडनर्स को बताया, ब्रिटिशर्स को बताया हाउ ब्रिटिश लूटेड इंडिया. व्हाई? दे नो दैट सीटिंग ऑन अदर साइड ऑफ आर्ग्यूमेंट इज सो इंपॉर्टेंट. आपने कभी अपने विरोधी, अपने अपोजिट की कोई बात सुनी है आज तक? या तो हम सिर्फ शिवाजी से प्यार करते हैं, औरंगजेब पढ़ना ही नहीं चाहते, या तो हम सिर्फ औरंगजेब से प्यार करते हैं, शिवाजी पढ़ना है. सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट. उसकी नजर से सोचो. सीक टू अंडरस्टैंड, नॉट जस्ट एनालाइज and make meaning. सबसे इंपॉर्टेंट, breathe life, make meaning from the information you have gathered. ये आने वाली सेंचुरी आपकी है अगर आपने ऐसा करके दिखा दी. ये आने वाली सेंचुरी आपकी है. This brings us to सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको अपने अंदर क्या बदलना होगा. You need to bring an art of explanation in you. Art of explanation बच्चों. Historians, painters, scientists, professors, everyone is in the business of explanation. हर कोई explanation के business में. And do you know who is a great explainer? The one who can make you see. The one who can make you see. जब तक आप अपने सिलेबस को ऐसे ना पढ़ लो that you can make people see, तब तक आपको उसे पढ़ना बंद नहीं करना चाहिए. Make people see. Art of explanation. ये हम एक वर्कशॉप लेंगे इस पे. Explanation is a very powerful asset. Do you know this? It can lower. देखो यहाँ लिखा है, it can lower the cost of understanding. अगर आपने अपना सिलेबस 8 स्टैंडर्ड से 10 स्टैंडर्ड या 12 स्टैंडर्ड से खूब दिल से पढ़ा है, या ग्रेजुएशन का सिलेबस खूब दिल से पढ़ा है, पता है क्या होता है उससे? You don't have to pay to NEET coaching institutes. वो क्या पढ़ा लेंगे ऐसा आपको जब आप अपना ही सिलेबस यू कैन मेक पीपल सी. 2.5 लाख रुपया वो बच गया. आप आईएएस यूपीएससी कोचिंग वालों को पैसा नहीं दोगे. क्यों? यू नो मोर देन देम. वो क्या पढ़ा लेंगे जितना आपको पता है.
2.5 लाख रुपीज वहां बच गया। अ गुड एक्सप्लेनेशन कैन लोअर द कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन एक्सप्लेनर यानी स्टूडेंट जब एक्सप्लेन करता है तो एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है स्टूडेंट के साथ। पता है वो पॉजिटिव इफेक्ट क्या है? वो पॉजिटिव इफेक्ट ये है कि व्हेन वी एक्सप्लेन समवन आवर कंसेप्ट्स गेट मोर क्लियर, हमारे अपने कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाते हैं। एंड एट अलिफ, और हम खासकर मेरी कोचिंग में मैं ऐसे करवाता हूँ यूपीएससी की, अलिफ एकेडमी में हम ऐसे करवाते हैं, किसी भी एक टॉपिक पर वी आस्क यू टू राइट अ स्क्रिप्ट फॉर वीडियो। इमेजिन करिए कि आप उस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं एंड वी वांट यू टू राइट अ स्क्रिप्ट। एंड व्हेन यू राइट अ स्क्रिप्ट, पता है क्या होता है? व्हेन यू राइट अ स्क्रिप्ट, ऑल आइडियाज व्हिच वर नॉट कनेक्टेड दे स्टार्ट गेटिंग कनेक्टेड। और पढ़ने के बाद ना आइडियाज सोचना पड़ता है, एंड आइडियाज दे राइज इन क्राउड्स and they collide with each other until stable combinations are formed. And जब तक स्टेबल कॉम्बिनेशन ना बन जाए उन आइडियाज को आपस में टकराना पड़ता है। हेनरी पॉइंटियर थे 1955 में, इन्होंने एक बुक लिखी, इस बुक को कहते हैं द फाउंडेशन ऑफ साइंस। इसके बिना यू कांट बिकम अ साइंटिस्ट। इन्होंने अपनी बुक में क्या लिखा था पता है? व्हाट इज अ वर्क ऑफ साइंटिस्ट, व्हाट इज अ कोर वर्क ऑफ अ साइंटिस्ट? कनेक्टिंग आइडियाज बाय रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स। Connecting ideas by recognizing patterns was at the core of the work of a scientist. Connecting ideas by recognizing pattern. Recognize कब करोगे पैटर्न? जब कोई चीज अच्छी समझ में आएगी। जैसे लिपस्टिक के सेल्स का डेटा मैं ला दूं कि सिर्फ लिपस्टिक कितना बिक रही है, व्हाट कैन यू टेल मी? इफ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन, इफ आई से लिपस्टिक के सेल्स का डेटा, आई कीप इट इन फ्रंट ऑफ यू, कैन यू ब्रीथ लाइफ इन दैट? रघुराम राजन कैन। रघुराम राजन ने लोग शॉपिंग मॉल्स ने 2005 में बताया था कि नथिंग इज गेटिंग सोल्ड इन आवर मॉल्स एक्सेप्ट लिपस्टिक। या तो लिपस्टिक या लिपस्टिक की कीमत से कम वाले आइटम ही बिक रहे हैं मॉल में। सो रघुराम राजन ने लिपस्टिक के सेल्स को देखकर बताया था कि स्मॉल लग्जरी सच एज लिपस्टिक इंडिकेट कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस जा रहा है, यानी उसकी आमदनी खत्म हो रही है। दिस इज अ साइन ऑफ ऑन कमिंग रिसेशन। एक रिसेशन आने वाला है क्योंकि लोग खर्चा नहीं कर रहे, क्योंकि इनकी नौकरियां जा रही है। कैन यू इमेजिन? लिपस्टिक के डेटा पे ही प्रेडिक्टेड अ रिसेशन, एंड अ रिसेशन केम 3 years आफ्टर हिज प्रेडिक्शन इन 2008, which was one of the most worst recession of all times. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप नोट कर ले, यू हैव टू बी एबल, जब कल किताब खुलेगी या आज से किताब खुलेगी, यू हैव टू बी एबल टू रीड मोर देन द फैक्ट्स और डेट्स और नंबर्स। मोर देन द फैक्ट्स और डेट्स और नंबर। एवरीवन, याद रखना, 36,000 लोगों के 95% से ऊपर आए। एवरीवन हैज एक्सेस टू सेम स्टफ। व्हाट मैटर्स इज द वे यू रीच योर कंक्लूजन्स। What matters is the way you reach your results, your conclusion. Can you see it in a new and creative way? That is what is called as creativity. आप ये देखो, you need to ये लिखकर कहीं चिपकाना चाहिए आपको अपने टेबल के सामने। We need to develop our observational skills and push beyond our own expectations and beliefs. And push beyond our own expectations and beliefs. सबसे इंपॉर्टेंट बायसेस से दूर रहना है। नाउ व्हाट इज दिस बायस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपको ये कोर्स नहीं करना चाहिए, अलिफ एकेडमी का ये कोर्स आपके पेरेंट्स को भी करना चाहिए। डू यू नो व्हाट इज बायस? वी ओनली सी व्हाट वी वांट टू सी। हम बस वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं। Either Prime Minister Modi is a very good Prime Minister or a Prime Minister Modi is not so good Prime Minister. We only see what we want to see. तो हमारी हालत कैसे है? ये बचपन में आपने एक लेसन पढ़ा होगा, An elephant with 6 blind men. 6 blind men पहली बार एलिफेंट को देखने जाते हैं, तो जिसके हाथ में एलिफेंट की ट्रंक आती है वो कहता है ओ एलिफेंट इज लाइक अ स्नेक। जिसके हाथ में एलिफेंट के कान आते हैं वो कहता है ओ नो नो एलिफेंट इज लाइक अ फैन। जिसके हाथ में पैर आते हैं वो कहता है ओ एलिफेंट इज लाइक अ ट्री। और जिसके हाथ में पूंछ आती है, टेल, वो कहता है ओ एलिफेंट इज लाइक अ रोप। हम सब ऐसा कर रहे हैं। दूं एक चैलेंज, करोगे सॉल्व अभी? मैं कहता हूं आप भी बिल्कुल इन ब्लाइंड मैन की तरह। सो आई गिव यू अ चैलेंज टू प्रूव माई सेल्फ। जरा जल्दी जल्दी ये पढ़ना जो मैं आपको दिखा रहा हूं।
Just read it aloud and read it very fast. Read it very fast and read it aloud. क्या लिखा है? Paris in the spring, once in a lifetime, bird in the hand. Wrong. Paris in the spring लिखा है, देखो. Once in a lifetime लिखा है, देखो. Bird in the hand लिखा है, देखो. How many of you got it right? Very few. मैक्सिमम ने इसको ऐसे ही हड़बड़ा के पढ़ा. इस चीज को टेस्ट करने के लिए प्रीलिम्स होता है. प्रीलिम्स होता है. एंड आई शो यू, हम वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं. बस ये देखो यहां पे क्या दिखता है इस फोटो में. इज इट अ वेरी यंग गर्ल और अ ग्रैनी? बताना जरा कमेंट बॉक्स में. इज इट अ वेरी यंग गर्ल और अ ग्रैनी? ये ग्रैनी है, यंग गर्ल है, कौन है ये? हाफ ऑफ यू विल से इट्स अ ग्रैनी. Some of you can see the nose and the ears and the eyes and you will say, no, it's a young girl. Actually, you both are right. आपको ये समझना होगा कि there are two point of view of the same thing and we have to sit on both sides of the argument. आप समझ गए कैसे पढ़ना है? पक्का हाथ उठा के दिखाइए. Raise your hands if you have understood what you need to be changed in your education. Are you getting what needs to be changed? हाँ बच्चों, हाथ उठाइए. So that I also understand you are alive here. आप भी सुन रहे हैं. मैं आपकी लाइफ बदलने रहीम भाई के आपको बहुत you must be thankful that we have organized such an event. Can you see 25 participants has raised hand. This is what you need to change बच्चों. This is what you need to change. This brings us to very important thing. आपको सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी दिलाता हूं मैं, जहां पे स्टार्टिंग सैलरी 40.7 लाख पर ईयर है बच्चों. स्टार्टिंग सैलरी 40.7 लाख मतलब 3.5 लाख पर मंथ 3.5 लाख. मैरिल लिंच फाइनेंस कंपनी है. इफ उनके रिक्वायरमेंट देखिए कितनी अच्छी है. इफ यू कैन क्रिएट मीनिंग बियॉन्ड नंबर्स, इफ यू कैन क्रिएट मीनिंग बियॉन्ड नंबर्स. फिर से देखो, इफ यू कैन क्रिएट मीनिंग बियॉन्ड नंबर्स, इफ यू कैन काउंटर योर नेचुरल बायसेस, if you can use judgment and experience beyond statistics, then we welcome you to work in Merrill Lynch. 3.5 lakhs per month कहाँ रखोगे? इतना पैसा माँ बाप खुश हो जाएंगे कब? If you can create meaning beyond numbers. 9 के टेबल के साथ थोड़ा खेल के दिखाओ, गांधी जी के साथ खेल के दिखाओ. If you can counter your natural biases, if you can use judgment and experience beyond statistics, then come and work with us. ये रोबोट क्या छीनेंगे तुमसे? If you are wisdomful, if you are intelligenceful, they are dataful बच्चों. Don't be dataful. Dataful करके कहीं नहीं जा रहे हो आप. आपको पता है दिल्ली में 4 यूनिवर्सिटीज है जहां मैं रहता हूँ. चारों का कट ऑफ फर्स्ट लिस्ट में 100% पे लगा है. कैन यू इमेजिन? 100% पे कट ऑफ लग गया. और पता है 100% की मार्कशीट देखिए कभी इतनी बोरिंग होती है. हर चीज में 100 में से 100, 150 में से 150. बट दे कांट ब्रीथ लाइफ बच्चों इन डेटा. दे कांट यूज देयर जजमेंट. दे कांट यूज देयर एक्सपीरियंस. दिस ब्रिंग्स अस टू दिस. ये वाली वादा करो, ये वाली चीज डेवलप करोगे, यू विल सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट. कॉन्ट्ररी थिंकिंग. दोनों साइड की सुनकर सोचो. वादा करो, हाथ उठाओ अपने. This kind of contrary thinking, very extremely useful for gaining insight and generating creativity. इसे कहते हैं bringing change in diagnosis बच्चों. इसे कहते हैं bringing change in diagnosis. तो हम आज अपने फादर से, अगर उनके फादर का रेस्टोरेंट है आपके, if there is some business, restaurant or he is owner of some shop, आज उनसे ये एक्सरसाइज कराना. ये हम अलिफ में करवाते हैं, एंटरप्रेन्योरल प्रोग्राम. वेरी सिंपल एक्सरसाइज है. गिव हिम अ पेज एंड अ पेन, या आप लेके बैठ जाना एंड आस्क योर फादर टेल मी व्हाट आवर कॉम्पिटिटर्स कैन डू दैट शुड मेक अस वरीड. हमारे कॉम्पिटिटर ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमको वरी होना चाहिए. कैन यू मेक अ लिस्ट? तो फादर जो बताए वो लिस्ट में लिख लेना कि हमारे कॉम्पिटिटर हमें यहां हरा सकते हैं, यहां हरा सकते हैं, यहां हरा सकते हैं. And then the third and the last step, give that list to father and say, implement it before your competition does. ये लिस्ट है फादर, दिस इज व्हाट आवर कॉम्पिटिटर्स कैन डू. इससे पहले वो करें, आपको करना चाहिए अपने बिजनेस में.
कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव किल्ड द कंपटीशन ऑफ योर फादर। बच्चों, कैन यू इमेजिन ये कितना इजी है? एंड ही विल से, अरे वाह, ये तुमने कैसे किया? बस कुछ नहीं, कॉन्ट्ररी थिंकिंग, मैंने अपने कॉम्पिटिटर बन के सोचा। सिट ऑन द अदर साइड ऑफ आर्ट। अगर आप में ऐसी बात है तो वोडाफोन वुड लाइक टू इनवाइट यू। वोडाफोन के इंटरव्यूज की लिस्ट है जो वो वहां टेस्ट करते हैं अपने इंटरव्यूज में। सुनना है क्या क्या? सबसे पहले एटीट्यूड, सेकंड कम्युनिकेशन, थर्ड अ विलिंगनेस टू स्पीक अप। उनकी हाँ में हाँ जितने लोग मिलाते हैं इंटरव्यू में वो निकाल देते हैं। दे वॉन्ट पीपल टू मार्क वॉट रॉन्ग दे आर सेइंग। अ विलिंगनेस टू स्पीक एंड एन एबिलिटी टू कॉल स्टॉप, रोक दो when the things does not seem right. वोडाफोन सबसे ज्यादा उन लोगों को लेता है one who has an insight to change the question. हम सोचते हैं ना दिल में कि दिस कंपनीज who recruit people ये क्या सोचकर सिलेक्शन करती हैं, these are the criteria they are looking. ये वोडाफोन के इंटरव्यू शीट का है। एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, विलिंगनेस टू स्पीक अप एंड एन एबिलिटी टू कॉल स्टॉप व्हेन द थिंग्स डिड नॉट सीम राइट। टाइम हो रहा है, मैं थोड़ा सा जल्दी बता दूं। गेंची गेनबुत्सु एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वेबिनार के आखिरी में वी हैव अ सरप्राइज फॉर यू। वो सरप्राइज बहुत इंपॉर्टेंट है। गेंची गेनबुत्सु इट्स अ जापानीज फ्रेज। जापानीज में इसका मतलब होता है गो एंड सी फॉर योर सेल्फ, गेट योर बूट्स ऑन। तो एनवायरमेंट पढ़ना है ना तो थोड़ा सा बगीचे में जाके पढ़ना चाहिए। इफ यू आर स्टडिंग द टाइप्स ऑफ सॉइल, थोड़ा सा सॉइल हाथ में लेके फील करना चाहिए। इफ यू आर स्टडिंग अबाउट शॉपिंग मॉल्स एंड मार्केट्स, वहां जाकर देखना चाहिए। पता है, गेंची गेनबुत्सु मतलब गो एंड सी फॉर योर सेल्फ। ये मशीन्स नहीं कर पाती, रोबोट्स नहीं कर पाते। तो दुनिया की सबसे महंगी कार में से एक है रोल्स रॉयस। इसकी कीमत इंडिया में 10 करोड़ 48 लाख से स्टार्ट होती है। 10 करोड़ 48 लाख में एक दो शायद अच्छे वाले हेलीकॉप्टर सेकंड हैंड एक तो आ जाएगा कम से कम। 10 करोड़ 48 लाख रुपीस की ये कार जब बिकती नहीं है तो रोल्स रॉयस ने एक नया काम किया, वो उनको टेस्ट ड्राइव पे लेके जाते हैं। And when they take them on test drive, the moment the car reaches 60 miles an hour, the only sound that you can hear comes from electric clock. तो इमेजिन करो हम सब रोल्स रॉयस में बैठे हैं, कार की आवाज गायब हो जाती है, हवा की आवाज गायब हो जाती है, only one sound you can hear, the electric clock. And वहीं पे ये कार बिक जाती है। When you see for yourself, things that change like something. And this is where we can beat the machines. What robots and AI will struggle with is the questions such as so what and what if. So what and what if. Make meaning from the information you have gathered. खाली पढ़ना नहीं है. You have to make meaning from the information you have gathered. तो अलिफ में हम यही करवाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट। Look for patterns, मैंने बता दिया। Be aware of biases. Sit on other side of argument. Seek to understand. And most important, make meaning from the information. अब ये थोड़ा सा आगे ग्रेजुएट लेवल और कंपटीशन एग्जाम के लेवल का सुनिए। If you want a job in 21st century, you need to reinvent and reinterpret yourself. क्या कहते हैं इसको? कैपेसिटी टू कन्वर्ट आइडियाज एंड थॉट्स। ये लिख लीजिए पेज पे। कैपेसिटी टू कन्वर्ट आइडियाज एंड थॉट्स इनटू कमर्शियली वैल्यूएबल एसेट्स। कैपेसिटी टू कन्वर्ट आइडियाज एंड थॉट्स इनटू कमर्शियली वैल्यूएबल एसेट्स। फिर से सुनना, कैपेसिटी टू कन्वर्ट आइडियाज एंड थॉट। तो मैं 3 आइडियाज देता हूं, आपस में कंबाइन करके दिखा दो जरा मुझे। टेलीस्कोप, ठीक है, लिख लिया? टेलीस्कोप, सुटकेस एंड व्हील्स। By combining these three, can you satisfy a psychological or social need of everyone? Telescope, wheel and suitcase. इन तीनों को कंबाइन करके बताओ क्या बन सकता है? Reinvent, reinterpret, ये बनता है। देखो, and this is $1 trillion industry. Can you see? चक्के हैं और टेलीस्कोप से क्या इंस्पायर है पता है इसका? हैंडल। जैसे टेलीस्कोप छोटा होता है, बड़ा होता है ना, वैसे हैंडल कैन गो इनसाइड एंड कम आउट। डू यू हैव दीज आइडियाज?
अगर है तो घबराने की जरूरत नहीं है. The companies will come. Do you read your syllabus like this? कभी कोई किताब ऐसे पढ़ के देखी है, उसके आइडिया को यूज करके देखा है कहीं? इफ यस, कोई नहीं रोक सकता मेरे बच्चों, कोई नहीं रोक सकता. This brings us to combine all these things into a big theme. मतलब सक्सेसफुल, ये वाली लाइन भी लिखना है आपको. सक्सेसफुल पीपल आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर लेसन्स दे कैन टेक एंड यूज एल्सवेयर. Successful people are constantly looking for lessons they can take and use elsewhere. कभी आपने ऐसा सोचा है? H2O फॉर्मूला है वाटर का, इससे फ्यूल बना सकते हो? Can you make a fuel by using H2O, the water? Yes. 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. 2 हाइड्रोजन आइटम्स को लेकर हम फ्यूल बना सकते हैं. एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग. रॉकेट में ये फ्यूल यूज होता है. सक्सेसफुल पीपल, मैं बोल रहा हूं, कोई और नहीं बताएगा ये बात. सक्सेसफुल पीपल आर कॉन्स्टेंटली लुकिंग फॉर लेसन्स दे कैन टेक एंड यूज एल्सवेयर. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मशीन्स. ध्यान लगाओ मेरी तरफ. मशीन्स they are filled with algorithm and data, and human beings they are filled with intelligence. मशीन्स का काम है डाटा और एल्गोरिदम, उनको उतना ही पता है जितना पता है. लेकिन हमारा काम कुछ और है बच्चों. वी हैव इंटेलिजेंस फिल्ड हियर. प्लीज इंटेलिजेंस हटाकर उसमें डाटा मत लाइए. कीप इंटेलिजेंस इंटैक्ट. डेटा को प्रोसेस करिए. और एक बात बताऊं, सेकेंड डे जो वर्कशॉप का है ना, हाउ टू एनलाइटन मेमोरी, 120 मिनट्स में यही बताऊंगा. व्हेन वी प्रोसेस डेटा इन डिफरेंट वेज, वो हमेशा के लिए कैसे याद हो जाता है. वी रिमेंबर इट फॉर ऑलवेज. We remember it for always. This brings us to, ये पिट क्रू है. आपने पिट क्रू देखा है कभी? हाथ उठाइए जरा. पिट क्रू देखा है? पिट क्रू क्या होता है? They prepare the car for next lap. उसका ऑयल चेंज करते हैं, उसमें फ्यूल डालते हैं, उसके टायर्स को चेंज करते हैं, जल्दी जल्दी करके दे मेक इट रेडी फॉर द नेक्स्ट लैप. इससे हॉस्पिटल का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो पिट क्रू के आइडिया से? Can you solve some idea? Can you take some idea? अभी बताया ना कि successful people are constantly looking for lessons that they can use and apply someday. Do you know, लंदन के एक हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम था कि ऑपरेशन थिएटर से, 1960s की बात कर रहा हूँ, ऑपरेशन थिएटर से when patients were taken out, उनको आईसीयू में शिफ्ट करते करते वो मर जाते थे. So what they did, they asked the Ferrari's pit crew, और फेरारी के पिट क्रू ने उनको एक स्ट्रेचर बनाना सिखाया जिसपे ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, वेंटिलेटर, ब्लड, सलाइन सब लगा हुआ था. और 3 सेकंड के अंदर ऑपरेशन थिएटर के बेड से उस स्ट्रेचर पे, और उस स्ट्रेचर के बेड से फिर आईसीयू के बेड पे 30-30 सेकंड में पेशेंट ट्रांसफर हो जाता. आज वो स्ट्रेचर दुनिया के हर हॉस्पिटल में यूज होता है. That is what the success is all about. Take a lesson from one industry, one category and apply it to another. इसे यूं कहते हैं मल्टीटास्किंग करना सीखेंगे आज से. क्या सीखेंगे? मल्टीटास्किंग. व्हाट इज मल्टीटास्किंग? You in your future you will be have to take many projects and you have to do various roles and responsibilities rather than having a single job. एक job के बदले you have to do many jobs. And one of our favorite personality, Elon Musk, दुनियावी personality, he is known for multitasking. आपको मालूम है इनके कंपनीज का नाम टेस्ला है. टेस्ला इज अ कार, इलेक्ट्रिक से चलती है, बैटरी से. और स्पेस एक्स है which takes the people to next planet. अब सुनना सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो आपको लिख के रखना है अपने टेबल के सामने. पेन चा तैयार है? Here is the lesson. The illiterates of 21st century will not be those who cannot read and write. The illiterates of 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. जो बार बार पढ़ नहीं, नया नहीं सीख सकते, they will be illiterates of 21st century. Those who cannot learn, unlearn and relearn. Universals सीखो, universals. Now what is universals? A person must be able to transfer skills
from one industry to another. You must be capable of identifying the skills that you can transfer from one industry to another. तो हमारा एक दोस्त है, वो बहुत अच्छा लॉयर था पर वो कर नहीं पाया लॉयर्स में इतना. सो नाउ ही हैज गॉन टू एडवर्टाइजमेंट एजेंसी. अब लॉयर जैसी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी पहुंचा, इतना कमाने लगा, ही स्टार्टेड अर्निंग सो मच. तो एक दिन उसके साथ पूछा, भाई हाउ इज इट पॉसिबल दैट अ लॉयर कैन अर्न सो मच इन एडवर्टाइजमेंट? ही सेड देयर आर मेनी यूनिवर्सल्स फ्रॉम लॉ यू कैन कॉपी इट इन एडवर्टाइजमेंट. हमने कहा जैसे का बोथ आर इमेजिनेटिव. लॉयर इज इमेजिनेटिव, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इज इमेजिनेटिव. बोथ यूज फैक्ट्स, इमोशंस एंड परसुएशन. लॉयर भी यूज करता है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी भी यूज करती है, फैक्ट्स, इमोशंस एंड परसुएशन. Both work with their clients to get them what they want. Universal. Lawyer also gets their client what they want, and advertisement agency also get their clients what they want. So both of them, they check sources, they are wary of first impressions, they are of good thinking, and these many qualities are there. So learning a quality which you can transfer from one industry to another is the education of 21st century. वरना जो मशीन्स दिखाई थी स्टार्टिंग में, दे आर गोइंग टू ऑटोमेट ऑल द प्रोसेस, दे आर गोइंग टू टेक योर जॉब एंड यू विल लैंड इन एन अनएम्प्लॉयमेंट क्यू. आई एम टेलिंग यू, इसे लिख लीजिए, द एबिलिटी टू क्रॉस पॉलिनेट एंड रिकॉग्नाइज यूनिवर्सल्स. द एबिलिटी टू क्रॉस पॉलिनेट यानी इस इंडस्ट्री, इस सब्जेक्ट, इस कैटेगरी से ली हुई चीज कैन आई अप्लाई इन दैट इंडस्ट्री, दैट सब्जेक्ट, दैट कैटेगरी. If yes, the 21st century belongs to you, or rather 22nd century. What is innovation? Tom Freston से पूछा था Viacom founders. Innovation is taking two things that already exist. Innovation is taking two things that already exist and putting them together in a new way. उसे नए तरीके से लगाना. Example है, when we are standing on the road, we have our GPS in our mobile. When a taxi driver is parking his vehicle on the road, he has his GPS in his mobile. Uber ने क्या किया? He took two things that already existed, हमारा GPS और उसका GPS, and he connected them together in a new way. And Uber has become a $1 trillion industry. Can you imagine? This is most important. Last thing, इसके बाद मैं आपको वो सरप्राइज दिखाता हूँ. Be broadly interested and prodigiously curious. हम पहला फाइल बनवाएंगे आपका वर्कशॉप में about your curiosity. Your curiosity needs to be cultivated. Example सबसे अच्छा स्टीव जॉब्स है. स्टीव जॉब्स के जो adopted father और mother थे, जिन्होंने उनको adopt किया था, they were very poor. और उनकी सारी सेविंग्स चली जाती थी टू गेट हिम इन ग्रेजुएशन कोर्स, और ग्रेजुएशन कोर्स में स्टीव जॉब्स का मन नहीं लगता था. तो उन्होंने क्या किया, उस कोर्स में से ड्रॉप आउट हुए लेकिन कैंपस नहीं छोड़ा. उन्होंने कोर्स छोड़ दिया, अपने माँ बाप से कहा प्लीज आप अपनी सेविंग्स मुझ पे खर्चा मत करिए, आई विल फाइंड समथिंग. और स्टीव जॉब वहां पर पर्शियन कैलीग्राफी की क्लासेस होती थी, वहां बैठे रहते थे. वहां बैठे बैठे जब वो देखते तो उनको बहुत अच्छा लगता था. सो ही स्टार्टेड डेवलपिंग फॉन्ट्स, द फॉन्ट्स वी कॉल एज सेरिफ एंड सैंस सेरिफ. नाम सुना होगा आपने, serif, sans serif, Times New Roman that we see in Windows and Macintosh, and that was a beginning of journey. And we all know ये आदमी कहाँ गया फिर क्रिएटिविटी के बलबूते. 2008 में Apple company was having more money than even the federal government of United States of America. इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी को कल्टीवेट किया. बच्चों, यू नीड टू डू दैट. सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग ग्रेजुएशन करिए, डी मेस्ट्राल है. He was an electrical engineer who used to go in the forest. तो फॉरेस्ट से वापस आते थे तो ये बर उनके पैंट में चिपके होते थे. These are the burrs. तो बर को निकाल के फेंकने के बजाय his curiosity was piqued. उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप में देखा तो बर्स के अंदर उनको एक हुक नजर आया. What he did, he copied these burrs by using a synthetic material, and that was the foundation of Velcro Corporation. और वेलक्रो ने क्या किया, इट सॉल्व्ड अ साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल नीड ऑफ पेरेंट्स. जितने बच्चों के शूज टाइट होते थे वो थोड़े ढीले हो गए, और जितनों के ढीले होते थे थोड़े टाइट हो गए. इट वाज $100 million इंडस्ट्री. यू नीड टू कल्टिवेट योर क्यूरियोसिटी.
पढ़ने का ये तरीका है, ये सब साइंस है, हाउ डू वी डू इट। जेम्स कैमरून को हम जानते हैं, ये शूटिंग कर रहे थे टाइटैनिक के, तो टाइटैनिक की शूटिंग में पहली बार टाइटैनिक देखने व्हेन ही वेंट इनसाइड द ओशियन टू सी द शिप wreck, नीचे जाते जाते he got an idea कि wow, it is so fascinating to go in some other world, so he got the idea of Avatar while what do you say, shooting for Titanic. And both of the movies were $1 trillion industries, so you have to cultivate your curiosity. So this brings me to a very important end, and let me show you some very important चीजें जिस पे we will end, and I will ask you then, Abdul Rahim bhai will make some announcement about a very beautiful workshop and how to get enrolled in that workshop. So here is the first very important thing that you need to do. आपने promise किया है बहुत सारा मुझसे, तो फर्स्ट थिंग फ्रॉम टुडे, जितनी भी चीजें अभी तक बताई उसके बाद अलावा, you will have to learn to love the problems. प्रॉब्लम्स को लव करना सीखना पड़ेगा. Learn to love the problems. Learn to love the problems का मतलब क्या होता है? Actively seek them out. Actively seek them out. Problems पता है क्या होते हैं? Where the opportunities hide, उसे problems कहते हैं. Problems are where opportunities hide. Problems are springboard from which you can show your leadership to entire world. Problems are, if you have a problem solving technique, then it will elevate your status. And problems, they bring usefulness to your work. Remember, think in questions, not statements. आज से करना है. While reading a book, you have to keep thinking in questions. Imagine करिए, you and I are standing near a river. मैं आपसे कहता हूं, how are we going to cross the river? बहुत सारे आइडियाज आएंगे. Sir, we can bring a raft. Sir, we can hold each other's hand. Sir, we can build a bridge. Sir, we can take a boat. How are we going to cross the river? Questions में think किया, endless possibilities निकल गई. लेकिन अगर मैं यूं कहता, let's build a bridge. This is a statement. जैसे ही statement कहा, it closed all the other possibilities. So you have to think in questions so that more possibilities open, and stop thinking in statements. If a problem is complicated, it means it has some interconnected challenges. It means it will have many dimensions to its answer. It means we have to find answers, not an answer. From today, you will have to promise me, you will never find one answer to any problem. You will find answers. You will generate ideas. Ideas क्या होता है? आपने सुना होगा ना, an idea can change your life. Actually, a super refined and upgraded idea can change your life. Not the idea. Super refined and upgraded idea. तो super refined and upgraded idea कैसे बनता है? Many ideas are produced and then we make a super idea out of it. जैसे prism, you might have seen prism. उसमें से sunlight को गुजारो तो beautiful color of rainbows मिलते हैं. इस ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबोज में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, वैसे ही एक सुपर आइडिया में देयर आर मेनी आइडियाज. और लास्ट चीज आज की, फेल वेल. पूछा फेल वेल क्या होता है? सर फेल से तो डर लगता है. एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ साइंटिस्ट एंड अ कॉमन मैन? कॉमन मैन, दे फियर फेलियर. साइंटिस्ट, दे नोट देयर फेलियर. साइंटिस्ट ना फेलियर को नोट करते हैं, नेक्स्ट टाइम दे अवॉइड सच थिंग्स. जब अलिफ में आओगे तो वी विल मेक अ फाइल वेयर वी विल मेक यू अ हैबिट टू नोट योर फेलियर सो दैट नेक्स्ट टाइम यू कैन अवॉइड इट. जैसे हमको याद है, थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो 1002 टाइम्स वो फेल हुआ था. 1003rd टाइम पे ही गॉट सक्सेस इन मेकिंग द बल्ब. आइंस्टाइन ने कहा था, हमको वो भी याद है, व्हाट आइंस्टाइन सेड, इट्स नॉट दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट, इट्स ओनली दैट आई स्टे लॉन्गर विद द प्रॉब्लम. तो यू हैव टू डेवलप दैट एटीट्यूड बच्चों, एंड
एजिलिटी, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्ट करना सीखो। दिस सेंचुरी कैन नॉट डिफीट यू। इसलिए हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए लेके आए हैं। वी हैव अ वर्कशॉप। वर्कशॉप ये जो है ये सिर्फ सीरियस बच्चों के लिए है, who want to change the way they study। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस वर्कशॉप में, वी विल ओनली टेक वेरी फ्यू वेरी डेडिकेटेड पीपल एट अ नॉमिनल फीस। ठीक है। इसकी सबसे खास बात जो रहेगी वर्कशॉप की ये रहेगी, we will teach you beautifully how to get intellect along with the marks। and marks and intellect के इस प्रोग्राम में same thing, the illiterates of 21st century will not be those who cannot read and write but who cannot learn, unlearn and relearn। so 6 की कंसेप्ट हैं। 2 बोनस क्लासेस भी हम प्लान कर रहे हैं इसमें, टोटल 8 क्लासेस करेंगे। 1 स्किल 1 डे। आज तो मैंने जल्दी जल्दी में सब बताया, लेकिन हर स्किल के पीछे एक साइंस है एंड दैट साइंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट डे, डे 1, हाउ टू अंडरस्टैंड बेटर। पूरा 120 मिनट्स हम इस बात में लगाएंगे कि अंडरस्टैंडिंग का साइंस क्या है, हाउ टू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें, वी विल शो यू हाउ टू रीड अ बुक। एक बुक को ऐसे कैसे पढ़े कि वो जिंदगी भर के लिए याद हो जाए एक बार में। द आर्ट ऑफ रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट्स, पैकेजिंग एंड एक्सप्लेनिंग योर आइडिया। दिस विल बी डे 1। डे 2 में, और हफ्ते में सिर्फ 2 दिन होगा ये प्रोग्राम, सैटरडे संडे। हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना चाहते आपका एकेडमिक कैलेंडर। वी ओनली वांट टू वैल्यू एड, हाउ टू लर्न फास्टर, द सीक्रेट साइंस ऑफ मेमोरी, अटेंशन, कनेक्शन एंड रिकॉल। कैसे बहुत सारा याद रखें, कैसे उसको ब्यूटीफुली रिप्रोड्यूस करें, कैसे हर चीज हमें एक बार के पढ़ने से वो जिंदगी भर लिखना आ जाए। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। थर्ड डे, हाउ टू डेवलप सेल्फ डिसिप्लिन। सबसे अच्छा इसमें जो टॉपिक होता है वो होता है हाउ टू अवॉइड प्रोकास्टिनेशन। चीजों को टालना कैसे बंद करें। लेट्स सरप्राइज our parents because we understand this in this session how the future is created by what you do today and not what you do tomorrow। and next is critical thinking, thinking in questions, generating ideas, generating solutions, generating answers, not answer। this critical thinking capacity is going to be there, the skill of learning, analysis, creativity, solutions। ये session 4 रहेगा। then abracadabra, this is a beautiful word using the power of words and communication। इसमें हम communication पे workshop करेंगे। without good words and the words nicely chosen, they rally communities, they elevate leaders, they build empires, they shift beliefs। you can build empire, you can build your followers। आइडियाज विदाउट इन्फ्लुएंस आर नथिंग बच्चों। सो आइडियाज के साथ इन्फ्लुएंस कैसे करें, हाउ टू गार्नर सपोर्ट फॉर आवरसेल्व्स। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। abracadabra and the last will be the smart notes and neural diagrams। कैसे ऐसे नोट्स बनाए जो जिंदगी भर हमारे साथ रहे, कैसे ऐसे नोट्स बनाए कि हमें नीट और यूपीएससी की कोचिंग दोबारा ना करना पड़े। आर स्कूल लर्निंग को हम ऐसा कैसा कर दें कि this becomes so beautiful। and then the last one,